Clearing IMU CET is just the first step. The real challenge begins when you sit down to choose your college, and that's exactly where most of the students get confused. And some questions arises in their mind like what is IMU counseling and how to take part in it? How do you correctly fill the college preference list? And what are the best colleges that you can prefer? What are these first list, second list, and sport round actually mean? And most importantly, how do you avoid losing your money or wasting an year? Because one wrong choice in online counseling can not just cost you the money, but your dream, your career path, and maybe even a whole year. So hello everyone, I am Kat Parth Mehta, fourth year at Indian Mentor University Kolkata campus, and today in this video we are going to talk about how to choose the best college after IMU CET. Whether you are aiming for BTech in Marine Engineering, BSc in Nautical Science or Diploma in Nautical Science. This video is going to be a step-by-step guide for you to crack IMU counseling and choose the best college smartly and confidently. So guys, first of all let's discuss about what is this online counseling and how it actually works. IMU का एग्जाम देने के बाद विद इन द 2 weeks आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. उसके बाद IMU जो है वो एक ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा दैट इज ओनली फॉर द 6 कैंपसेस दैट इज कोलकाता, मुंबई पोर्ट, नवी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोची. एंड इन सब कैंपस के अंदर सीट अलॉटमेंट होगा इस काउंसलिंग के दौरान और फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और स्पोर्ट राउंड निकलेगा जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड इस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा और 10,000 रुपये पे करके इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा सो दैट यू कैन टेक पार्ट इन ऑल दीज राउंड्स. And guys, we will discuss about this 10,000 rupee fees later in this video. And after registration, you will be asked to fill a preference list of your colleges. That will again we will discuss later part in this video. So guys, now let's move ahead and discuss about what is the preference list and how to fill it. And now this is where most of the students go wrong. While filling the preference list, you are telling IMU your order of college choices from your first priority to the last. For example, if you are applying for BTech in Marine Engineering, your first preference could be like IMU Kolkata campus, then Chennai, then Mumbai Port. If you get a good rank, you will automatically get your first priority, and if not, they will check for your second priority and so on. The most important tip to fill the priority list are always put your dream college in your first priority, but also include some practical backups based on your IMU CET rank. Don't leave too much option or you might not get seat at all. So guys, now let's move ahead and let's discuss about what are the colleges that you can prefer in your preference list based on the reputation, faculty, training and placement. Here are the top choices for each program. Like for BTech in Marine Engineering, you can choose IMU Kolkata campus for its legacy and vast alumni network, and IMU Chennai campus for its great infrastructure. For BSc in Nautical Science, you can choose Navi Mumbai campus as it has a legendary name in deck side training. IMU Kochi campus, it is excellent for the Nautical Science, and IMU Chennai campus again as it is an all-round a good college. And guys, also note that there are also some private colleges that are Tolani, IMI, SIMS that are not included in this list just because we are now talking about the IMU counseling, and to apply in these private colleges you have to apply individually, so we are not discussing them right now. So guys, let's move ahead and discuss about what are some common mistakes that students used to make, and they have to avoid all these things during the counseling procedure. So the mistake 1 is random filling of the preference list. कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ भी preference list fill कर देंगे, मे बी वो उनका ड्रीम कॉलेज नहीं है फिर भी उसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल देंगे. तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया ना तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे और आप फंस जाओगे उसमें. आप ना उसको कंफर्म कर पाओगे ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे जा पाओगे. तो प्रेफरेंस लिस्ट को जो है एकदम शांति से और अच्छे से भरना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. एंड गाइस, द सेकंड मिस्टेक इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो in the IMU counseling procedure. So guys, with the help of this video I am going to clear each and everything that you have to pay during the whole procedure. So guys, first of all आप लोगों को 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा that we have discussed earlier in this video, और इन 10,000 रुपये में से जो 9,000 रुपये है वो है रिफंडेबल एंड 1,000 रुपये जो है वो है नॉन रिफंडेबल. फॉर एग्जाम्पल, आपको IMU चेन्नई कैंपस अलॉट हुआ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट, बट आपने जो है उस कॉलेज को चूज़ नहीं किया और आप जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा था आप उससे बैक ऑफ कर गए. इन दिस सिनेरियो 1,000 रुपये IMU वाले रख लेंगे और 9,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा. बट अगर आपने IMU चेन्नई कैंपस की जो सीट आपको अलॉट हुई है उसको आपने कंफर्म कर लिया, देन आपके और 10,000 रुपये पूरे गए. उसके बाद आपको एडिशनली 30,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और नॉट दैट ये 30,000 रुपये कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है. और अभी आपके जो है इस पॉइंट पे आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है और आपके 40,000 रुपये जो है स्पेंड हो चुके हैं.
और जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उस टाइम पे आपको जब कॉलेज विजिट करना होगा, जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो है फ़ी पे करेंगे, तो ये 40,000 रुपये उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और बची हुई फीस आपको देनी होगी। तो ये है कम्प्लीटली फ़ी प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग। एंड कई लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती और वो कुछ भी पैसा पे कर देते हैं। कई बार जो है ऑनलाइन काउंसलिंग से बैक ऑफ नहीं कर पाते प्रॉपरली, सीट बेमतलब में कंफर्म कर देते हैं, उनको फिर बाद में ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो इस केस में जो आपका पैसा जो है वेस्ट हो जाता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपने एक बार सीट कंफर्म कर दी और वो 30,000 रुपये पे कर दिया, तो आपके जो कंप्लीट 40,000 रुपये है ना वो गए। उसके बाद अगर आप बैक ऑफ करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। एंड गाइस, द थर्ड मिस्टेक इज नॉट कंफर्मिंग द सीट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एमयू चेन्नई कैंपस। अगर आपको एमयू चेन्नई कैंपस अलॉट हुआ और आपको कुछ ड्यूरेशन मिलेगा आपको सीट कंफर्म करने का, या तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बैक ऑफ हो सकते हो या फिर उस सीट को कंफर्म कर सकते हो 30,000 रुपये पे करके। अगर आपने उस टाइम फ्रेम में उस सीट को कंफर्म नहीं किया तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है सीट चली जाएगी और आप ऑनलाइन काउंसलिंग जो है उससे ड्रॉप आउट हो जाओगे। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको विद इन टाइम फ्रेम उस सीट को कंफर्म करना है और अपना जो रिक्वायर्ड फ़ी है उसको वहाँ पे करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। एंड गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ मिस्टेक, दैट इज इग्नोरिंग रैंक बेस्ड चॉइसेस। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। आप लोग क्या करते हो, आपकी रैंक आ गई फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हाई, बट आपने जो है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसी स्ट्रीम्स या ऐसे कॉलेज डाल दिए वो बहुत अपर रैंक से मिलते हैं और आपकी उतनी रैंक अभी है नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कॉलेजेस नहीं मिलेंगे और आपने वैसे वाले कॉलेजेस भरे ही नहीं जिसको आपको प्रैक्टिकली जिसमें सीट मिलनी चाहिए थी। तो ये गलती मत करना। आप एक बार अपनी रैंक को एनालाइज करना कि आपकी कितनी रैंक आई है और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कि आपको प्रैक्टिकली ये कॉलेज मिल सकते हैं और आप इन कॉलेज को ही अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालो। ऑब्वियसली यू कैन पुट सम टॉप कॉलेजेस इन योर फर्स्ट प्रेफरेंस, बट जो है आपके जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्रैक्टिकल चॉइसेस सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे रखना है आपको। एंड गाइस, जिसकी रैंक आ चुकी है और अब उसको पता नहीं है कि उसको आगे क्या प्रेफरेंस लिस्ट किस हिसाब से फिल करनी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अलग अलग कॉलेजेस की कट ऑफ बता रखी है। उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी चाहिए वहाँ पे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस स्मॉल जेस्चर ऑफ योर्स रियली मोटिवेट मी अ लॉट to make more and more new videos for you. So guys, let's move ahead and talk about what is the meaning of this first list, second list, third list, fourth round and each and everything that used to be there in online counseling. तो फर्स्ट लिस्ट क्या होती है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे 20 सीट्स हैं और हम लोग कट ऑफ्स निकालते हैं और पूरी 20 सीट्स को फिलअप कर देते हैं। तो 20 सीट्स में क्या होगा कि 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो सीट को कंफर्म ही नहीं करेंगे और काउंसलिंग से बैक ऑफ कर देंगे। तो अगेन हमारे पास 10 सीट्स वैकेट होगी। अब हम लोग एक सेकंड लिस्ट निकालेंगे जो उन 10 सीट्स के लिए होगी और अगेन हम उस पूरी 10 सीट्स को फिलअप कर देंगे। अगेन उनके अंदर से 5 स्टूडेंट्स होंगे, वो ड्रॉप आउट कर देंगे काउंसलिंग से और चले जाएंगे। अगेन हम लोग थर्ड लिस्ट निकालेंगे फॉर दीज 5 सीट्स और इस 5 सीट्स में से भी कोई ना कोई एक सीट ऐसी होगी जो कोई भी स्टूडेंट कंफर्म नहीं करेगा और वो वैकेट रह जाएगी। उसके लिए होती है स्पॉट राउंड। एंड गाइस, ये जो स्पॉट राउंड है इसमें आपको पार्ट लेने के लिए आपको फिजिकली उस पर्टिकुलर कैंपस से विजिट करना होगा और उसके एडमिशन से पूछना होगा कि लाइक इफ द सीट्स आर वैकेट और नॉट। इफ दे आर वैकेट दे यू विल डेफिनेटली गेट द सीट एंड दिस होल प्रोसेस विल बी ऑन द फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। सो कीप दिस इन माइंड कि आपको सीट मिल जाएगी स्पॉट राउंड में, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। The spot round is actually the last chance to get admission into the IMU campuses, so you don't have to rely on it completely, but it is a secondary choice that you might get admission or might not. So guys, let's discuss about some do's and don'ts that you have to keep in mind while participating in IMU counseling. So the first one is fill your preference list wisely. Put the dream college first and after that backups. Know the difference between the 10,000 and 30,000 rupee fee that you are paying during the online counseling. Be realistic about your rank versus college options. Do not panic if you do not make through the first list. Keep checking the updates. If nothing works out, go for the spot round. Use your internet wisely and search for each and every college, their placement and their overall review. And guys, that's it for this video. If you found this video helpful, please like this video and subscribe to my channel. This thing really motivates me a lot to make more and more new videos for you. And guys, if you haven't watched the marks versus college analysis, then click here and
If you haven't watched how to score under 1k rank in IMU CET, then click here. Till then, see you in my next video. Goodbye.